Essay writing. Mahatma Gandhi was a great man of India. He was a servant of mankind. He was the father of the nation. Countrymen called him Bapu. His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. He was born on October 2, 1869 at Porbandar. His father was a Diwan of Rajkot. He received his education in India and England. He became a barrister in 1891. He started his practice at Bombay, an Indian firm called him to South Africa for legal advice. Here he fought for the right of the Indians. In 1914, Gandhiji came back to India. He fought against the rule of British. He was sent to jail many times. At last, he succeeded. India became free on 15th August 1947. Gandhiji believed in peace and non-violence. He led a simple life. He was against the caste system. He worked for the uplift of the richer and the Hindu Muslim unity. On January 30, 1948, he was said dead by Nathuram Godse. Gandhiji's name will always shine like a star. His grateful countrymen will never forget him. Diwali, an important festival of Hindus. The Hindus celebrated many festivals. Diwali is the most important of them. It is the festival of light. It comes off in October or November. It is celebrated in honor of Lord Ram's return to Ayodhya after 14 years of exile. For many days, preparation are made. People clean their houses. Then they get them whitewashed. Shopkeepers decorated their shops. The old and the young celebrated the festival alike. They are gay and cheerful. At night, there are row of light. Candles are lighted. People worship Lakshmi, the goddess of wealth. Some people gamble on this day. It is a bad habit. It has and many people say it should be so stopped. We should enjoy the festival in a good way. दशहरा इसी प्रकार दशहरा को भी ले सकते हैं, क्रिसमस भी है. इधर दिया है मकान छोड़ने के लिए किराएदार को मकान मालिक का पत्र. श्री राम गुप्ता 86 चांदनी चौक दिल्ली. प्लीज महोदय, आपको सूचित किया जाता है कि पिछले 4 माह से आप मकान किराया नहीं दे रहे हैं. इस समय मकान का किराया देने की आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है. अब मैं आपसे यह मकान छोड़ देने के लिए आग्रह कर रहा हूँ. आपको 1 महीने का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है जिससे आप यह मकान छोड़ने जा सके. जिसके बाद मैं कोई कानूनी कार्रवाई करूँ तो इसके लिए आप मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते. धन्यवाद. दिनांक इतना. भगवती 86 चांदनी चौक दिल्ली. प्रमुख वैसायिक पत्र निम्न है. प्रकाशक से अपने स्कूल के लिए पुस्तक मंगाने हेतु टू दी मैनेजर. प्रकाशक 3/69 मनपुआरा अग्र. विक्टोरिया इंटर कॉलेज हरी रावत अग्र. डेट 1045. ऑर्डर फॉर सप्लाई टू बुक. We are required, sir, we are required the following book for our school. Name of books: Perfect English Speaking Course 50, General Knowledge, Rashtriya Geet 60. We are remitting Rs 500 as advance. Please allow us the maximum discount on books. We have planning to get the above mentioned book to the students place in merit on the college annual day. Our award will automatically standard cancelled if the above books do not reach by used by 15 April. Thanking you. Your faithful Garg Vibration. इसी प्रकार दिया हुआ है.
आगे इस प्रकार का सब स्वागत। सुनीता विलियमसन। पृथ्वी में 421 किलोमीटर की ऊंचाई से ड्रैगन निकाला 17 घंटे के सफर पर सुखांत की ओर। 286 दिन बाद स्पेस स्टेशन से गृह प्रवेश। सरकार सुरक्षा देने के नाम पर आम नागरिक को बिल थमाने लगे तो यह गंभीर चिंतन का विषय है। टैक्स पेयर की सुरक्षा की गारंटी कब लेगी सरकार? नागरिक अधिकार। ओल्ड एज गोल्ड। धोनी सबसे उम्रदराज, उम्र 43 के पार लेकिन चमक बरकरार। शेफाली वर्मा ने वनडे में ली हैट्रिक। अंडर-23 चैंपियनशिप। भारतीय बल्लेबाज शेफाली वर्मा हालांकि अपनी बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं, लेकिन 21 वर्षीय शेफाली वर्मा ने अंडर-23 वनडे ट्रॉफी में हैट्रिक विकेट ले लिया, हैट्रिक बनाई, विकेट हासिल किए, 20 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। शेफाली वर्मा क्रिकेटर। ब्राजील और उरुग्वे के खिलाफ मैच में नहीं खेलेंगे। मंगला क्षेत्र में गड्ढों को पाटने जहां डंप करनी थी मिट्टी, वहां डाल रहे शहर भर का कचरा। अध्ययन मनन से दृष्टिकोण का विस्तार होता है। कुरकुरा नमकीन बनाने की विधि दिया गया है। तैयारी का समय 5 मिनट। वही है 2 कप सफ़ेद मुरमुरे, आधा कप मूंगफली, 1/4 कप दाल भूंजी, 1/4 काजू, 1/4 चाय, नारियल के टुकड़े, 2 बड़े चम्मच किशमिश, 1/4। इतना सब मिलाकर स्वादानुसार आयल और मिला दें, बन जाएगा कुरकुरा नमकीन। शुगर की अंजीर की बर्फी। भुने हुए चने की ठंडाई। रोस्टेड सीड्स मुखवास, रोस्टेड पीनट भेल, शुगर खजूर के लड्डू। एक मुट्ठी बादाम रोजाना का सुपरफास्ट, शक्ति और बुद्धिवर्धक। पोषण का राज बादाम। महाराष्ट्र के नागपुर में 2 गुटों में हिंसा। विश्व हिंदी परिषद और बजरंग दल ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने औरंगजेब का पुतला जलाया। पुतले में आपत्तिजनक सामग्री का इस्तेमाल किया गया, इसमें एक चादर को भी रखा गया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद एक समुदाय विशेष के लोग चौराहे पर जमा हो गए और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाने लगे। वायलेंस रिप्टाइज बजरंग दल वीएचपी प्रोटेस्ट इन नागपुर। बजरंग दल के जुलूस के दौरान हुए पथराव। औरंगजेब की कब्र को लेकर नागपुर में हिंसा। मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूँ कि सरकार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जिन्होंने गलती की है या अवैध गतिविधियों में लिप्त है। कृपया पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, प्रेम बढ़ाएं और शहर में सकारात्मक माहौल बनाए रखें। नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री। औरंगजेब के मकबरे की ध्वस्त करने की मांग को लेकर नागपुर में तनाव। असम राइफल्स। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अटेंडेड असम राइफल्स रिलोकेशन सेरेमनी इन मिजोरम। प्राथमिक यह भारत का सबसे पुराना केंद्रीय अर्धसैनिक बल है। 6 केंद्रीय
सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। उत्तर पूर्वी भारत और अन्य क्षेत्रों में जहां आवश्यक समझा जाता है, आतंकवाद विरोधी अभियान चलाता है। यह दोहरी नियंत्रण संरचना वाला एकमात्र अर्धसैनिक बल है। गृह मंत्रालय, भारतीय सेना, रक्षा मंत्रालय। प्राथमिक अधिदेश उग्रवाद विरोधी, सीमा की रखवाली, पूर्वोत्तर में कानून और व्यवस्था, भारत में महान सीमा के लिए सुरक्षा बल के रूप में भी। शक्ति 46 बटालियनों में संगठित 63,000 से अधिक कर्मियों की स्वीकृत शक्ति है। असम राइफल्स का इतिहास। स्थापना 1835 में कछार लेवी के रूप में। दारंग बटालियन नाम परिवर्तन 1917 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1942 में जापानी आक्रमण के बाद असम राइफल्स ने दुश्मन की सीमा के पीछे कई स्वतंत्र लड़ाइयाँ लड़ी। ये सब दिया गया है। असम राइफल्स बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर बांग्लादेश बॉर्डर, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, चाइना तिब्बत चाइना बॉर्डर 83,790। सशस्त्र सीमा बल SSB, नेपाल भूटान बॉर्डर स्ट्रेंथ 87,457। असम राइफल्स और म्यांमार बॉर्डर। असम राइफल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊपर के सभी यह भारत का सबसे पुराना केंद्रीय अर्धसैनिक बल है। यह उत्तर पूर्व भारत और अन्य क्षेत्रों में जहां आवश्यक समझा जाता है वहां आतंकवाद विरोधी अभियान चलाता है। यह दोहरी नियंत्रण संरचना वाला एकमात्र अर्धसैनिक बल है। क्रिएटर्स इकोनॉमिक संदर्भ में कथनों पर विचार करें। केवल 2। क्रिएटिव इकोनॉमी को वाइट इकोनॉमी भी कहा जाता है। तालिबान के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी, रणनीतिक बदलाव या जोखिम भरा कदम। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री राजनीतिक और आर्थिक संबंध और मानवीय सहायता पर चर्चा करने के लिए दुबई में तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की। तालिबान के कब्जे के लगभग एक साल बाद जून 2022 में काबुल में अपना दूतावास फिर से खोलने के बाद तालिबान के साथ भारत का जुड़ाव बढ़ रहा है। तालिबान द्वारा नियुक्त दूत को स्वीकार करना वस्तु शासन को मान्यता देने के रूप में देखा जाएगा, जिससे अधिकांश देशों ने मानवाधिकार उल्लंघन के कारण स्वीकार कर दिया। तालिबान द्वारा महिलाओं के साथ किए जाने वाले व्यवहार में शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध शामिल है। चीन की त्वरित चालें और रणनीतिक प्रभाव। चीन पहले ही तालिबान के दूत को मान्यता दे रहा है और अफगानिस्तान में आतंकवाद का बढ़ता खतरा। तालिबान मंत्री खलील उर रहमान हक्कानी की हत्या दिसंबर 2023। काबुल 2022 में एक होटल पर हमला जिसमें चीनी नागरिक अक्सर आते जाते रहते हैं, जिसमें 3 लोग मारे गए थे, 18 घायल हुए थे। भारत की अपनी सुरक्षा नीति। दिसंबर 2023 की जिम्मेदारी। भारत अब सीधे तौर पर आतंकवाद की निशाने पर, जिससे तालिबान के साथ उसके घनिष्ठ संबंध पर चिंताएं बढ़ रही हैं। निष्कर्ष। चीन और पाकिस्तान से मिले सबक तालिबान शासित अफगानिस्तान में निवेश के जोखिमों की ओर संकेत करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का हालिया प्रभुत्व अफगानिस्तान में भारतीय हितों को कैसे प्रभावित करेगा, आलोचनात्मक विश्लेषण करें। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। इनकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती हैं। ततुक 2014 में अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल ISAF की प्रस्तावित वापसी क्षेत्र के देशों के लिए प्रमुख सुरक्षा निहितार्थों से भरी हुई है। इस तथ्य के आलोक में परीक्षण करें कि भारत अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है और अपने स्वयं के सामरिक हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है। यमन में ट्रंप के हवाई हमले, रणनीतिक कदम या उग्रीकरण। डोनाल्ड ट्रंप ने यमन में हवाई हमले किए हैं, जिनमें सना और सदा में हौथी मिसाइल स्थलों और नेताओं। खबर है कि 5 बच्चे सहित कम से कम 53 लोग मारे गए हैं तथा
हुतियों ने बदला लेने की धमकी दी है। अमेरिकी हवाई यात्राओं की चुनौतियां और जोखिम। निष्कर्ष कल्याण और रोजगार निरंतरता में प्रणालीगत बाधाओं को दूर किए बिना श्रम की कमी का समाधान नहीं किया जा सकता। प्रौद्योगिकी संचालित सुधार, अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी और बेहतर कौशल पहल एक स्थिति और लचीले निर्माण कार्यबल के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। शोधकर्ता ने दक्षिण पश्चिम भारत में पाई जाने वाली नई झाड़ी प्रजाति का नाम केरल राज्य के नाम पर उनियाला कैरलेंसिस एस्टेरिसिस परिवार रखा है। उनियाला कैरलेंसिस पेपर के अनुसार एक छोटी सी बड़ी झाड़ी होती है जो 1 से 3 मीटर तक ऊंची होती है और इसमें आकर्षक हल्के बैंगनी रंग के फूले होते हैं। वैल्यू एडिक्स भारत में पुनर्विनिर्माण व्यवसाय शुरू करने के लिए IRDAI की मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली निजी फर्म बन गई हैं। 1938 और IRDAI विनियमन 2018 के तहत शामिल। हाल ही में अमेरिका ने यमन स्थित हौती विद्रोहियों के खिलाफ आश्चर्यजनक हवाई हमले किए। अर्मेनिया राजधानी येरेवन। मुद्रा अर्मेनियाई। ड्रामा आधिकारिक भाषा अर्मेनियाई। प्रधानमंत्री निकोल पाशियान। भारत के मुख्य न्यायाधीश अमल कुमार सरकार। कार्यकाल। अपने कार्यकाल के दौरान सरकार ने 228 निर्णय लिए और 653 बेंच में बैठे। उन्होंने कोलकाता में उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में अभ्यास करके अपना करियर शुरू किया। वे जनवरी 1949 में कोलकाता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने और मार्च 1957 तक अभ्यास करते रहे। लास्ट डे रिकॉल ओनली फॉर सीरियस स्टूडेंट्स। लेक्स फ्रीडम एंड PM मोदी। पॉडकास्टर लेट टेररिस्ट अबू कत्ल killed in Pakistan. US air strikes on Yemen. Houthis. Environment research letter. Air pollution and solar panel. World air quality report. SpaceX mission attack on Zafar Express and Baluch insurgency. Health police, universal health coverage, public health, education and environment, employment, India's nutrition challenge, UN80 initiative, Vatican City, PB राजेंद्र गडकर। अभी इसमें अमल कुमार सरकार।